Good morning everyone. Welcome to chapter 21 extra practice exercise. In this your first question is find the area of an equilateral triangle whose perimeter is 45 centimeter. That is a perimeter is given, like here if equilateral triangle means all sides are equal, so we consider a side is A and perimeter of equilateral triangle is 3 times A is equal to 45. 45 divided by 3 gives me 15 centimeter and my area of equilateral triangle formula is root 3 by 4 into A square. Now you just replace the value of A is 15 into 15 and when you multiply 15 into 15 gives you 225 and root 3 value is 1.732 divided by 4 gives you after calculation 97.425 centimeter square is my required answer. In your second question, the height of the triangular field is twice its base. This is an triangular field. In this, height of this is equal to 2 times base. If the cost of cultivating the field at rupees 400 per hectare is रुपीज़ 6400, फाइंड इट्स बेस एंड हाइट। आपके पास एक ट्राइंगुलर फील्ड दिया हुआ है, उसमें दिस वन इज अ हाइट, ओके, एंड दिस इज बेस। whenever you have to find the area of triangle, so what will you do? You will do half into base into height. So in this that is already given, height is equal to 2 times the base. जो भी आपकी base की value होगी उसको अगर 2 से multiply करोगे तो that will be exactly equal to your height value. So now you have to find the area कि ये मेरा triangular field का area कितना था। वो मेरे पास एक condition दी है कि अगर 1 हेक्टेयर मीन्स 10,000 मीटर स्क्वायर, अगर 10,000 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट आती 400 रुपीज़ आती है, तो 6400 रुपीज़ में कितने एरिया को कल्टीवेट किया गया। तो इसमें आप यूनिटरी मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, यहाँ आप प्रोपोर्शन मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। इफ़ 400 रुपीज़ कॉस्ट ऑफ एरिया, दैट कल्टिवेशन ऑफ एरिया that is equal to 10,000 meter square, it means 400 rupees में 10,000 meter square एरिया ही कल्टिवेट होता है। दैट मीन्स उसको थोड़ा मेंटेन किया जाता है। तो 6400 रुपीज़ में कितना एरिया मेंटेन होगा? दैट इज 10,000 डिवाइड बाई 400 इंटू 6400, सो दैट गिव्स मी 1,60,000 meter square area. So this is considered as my area of the triangular field. ये जो 1,60,000 meter square है, this is the area of this triangular field. अगर मेरे पास एरिया है, एरिया का ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, so that is equal to 1,60,000 and in my question height is equal to 2 times base, that is given in my question कि height is equal to 2 times base है, because whenever two variables are there it's very difficult to find the value of the any one variable if two variable is there. So try to make two variable as single variable by substituting whatever condition is given in your question. Here my question is given h is equal to 2 times b, so I replace h is equal to 2 times b. Now b square is equal to 400 square, that is 1,60,000. Power is same, we ignore the power and base is equal to b is equal to 400. Now you get the value of base is equal to 400 and height is equal to 2 times base is equal to 800 meters. Next is your third question. In your third question, here your question is find the area of an isosceles triangle whose equal sides measure 5 centimeter each and height corresponding to the third side is 4 centimeter. आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दी है, इसमें सिर्फ 2 इक्वल साइड की मेजरमेंट दी है, बेस की मेजरमेंट नहीं दी, और जो एक वर्टेक्स से जो बेस को एक परपेंडिकुलर टच कर रहा है या उनके बीच का जो डिस्टेंस है वर्टेक्स से सामने वाली साइड का, जो बेस वाली साइड है आइसोसेलेस की, वो हाइट आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर. सो यू हैव हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज गिवन, साइड इज गिवन, base you have to find and area you have to find. Height of an isosceles triangle formula is a square minus b by 2 whole square. A square minus b by 2 whole square, we directly apply the value here. In place of a we have values given, h value is given to me. So first to remove the square root we will take squaring both sides. H square is equal to a square minus b by 2 whole square
Now replace the value, height and the side A. 4 square 16 is equal to 25 minus b square by 4. By transposing we get b square by 4 is equal to 9. Cross multiply, b square is equal to 4 into 9 is 36 and square root of 36 give me 6 centimeter. After getting the base value, I will directly move to the find of the area of isosceles triangle. Directly apply the formula b by 4 root 4a square minus b square. Just replace the a value as 5 and b value as 6. You will get the area, that is 12 centimeter square after calculation. Now your fourth question is, in this the length of the sides of the triangle are in the ratio 3:4:5 and its perimeter is 60 centimeter. आपको मेजरमेंट दी है एक ट्राइंगल की साइड्स की 3x 4x 5x. whenever three different measurement is given to you, that triangle is considered as our scaling triangle, and always area of scaling triangle we solve with the Heron's formula. Here first we try to find the sides. After getting the measurement of sides of the triangle, we find the area by the Heron's formula. Here first side is equal to a is equal to 3x, second side is b is equal to 4x, third side c is equal to 5x. When you add all these sides 3x plus 4x plus 5x, that give you 12x, and your x value is 5 centimeter after dividing 60 by 12. So according to that, your one side is 15, 20 and 25. This will be the three measurement of the triangles. So we consider as A, B and C. Now we apply the Heron's formula. First we find the S value, that is a semi-perimeter. A plus B plus C by 2. 15 plus 20 plus 25 by 2 give me 60 by 2 is 30 centimeter. Now we apply the Heron's formula. A is equal to root S, S minus A, S minus B, S minus C. Then 30 minus 15. When you apply the value, you will get 150 centimeter square is required area. Next, your fifth question is, cost of fencing a square field at rupees 60 per meter is rupees 32,000. And find the cost of reaping the field as rupees 35 per 100 meter square. मेन क्वेश्चन इन दिस दैट कि अगर आपके पास एक स्क्वायर फील्ड का एरिया दिया है, स्क्वायर फॉर्म में एरिया दिया है, अगर उसकी बाउंड्री लगाई जाती है तो 1 मीटर लेंथ की बाउंड्री की कॉस्ट 16 रुपीज़ है. तो टोटल फेंसिंग पे खर्चा हुआ था 32,000 रुपीज़. फर्स्ट ऑफ आपने निकालना है कि बाउंड्री की लेंथ कितनी थी जिस पे खर्चा 32,000 रुपीज़ का आया. फिर बीच का एरिया आ जाएगा. फाइंड द कॉस्ट ऑफ रीपिंग द फील्ड. अब उसमें कुछ आपने वो बीज वगैरह भी लगाने हैं जो आप फार्मिंग करते हो. अब उसकी कॉस्ट आती है कि अगर 100 मीटर स्क्वायर एरिया को में मतलब उसमें कुछ फ्रूट्स वगैरह लगाए जाए 100 मीटर स्क्वायर एरिया में, उसकी कॉस्ट 35 रुपीज़ आ रही है. तो जैसे ही आपका पैरामीटर निकलता है वहाँ से आपने एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, और एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने से ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि टोटल कितनी कॉस्ट आएगी. उसके लिए मुझे एरिया ऑफ स्क्वायर चाहिए. इस क्वेश्चन को मैं दो तरह से कर सकती हूँ. फर्स्ट, अगर मुझे यूनिटरी मेथड से करना है, like 16 rupees is the cost of fencing of length 1 meter, then 32,000 is cost of fencing of length 32,000 meter divided by 16 give me 2,000 meter. Now perimeter of square, whatever we got the length, because 32,000 रुपीज़ आपके टोटल फेंसिंग पे कॉस्ट आई थी. तो कितने मीटर एरिया पे कॉस्ट आई थी, दैट इज 2000 मीटर. दैट मीन्स पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर 2000 मीटर आ गया. पैरीमीटर का फॉर्मूला है 4 टाइम्स साइड. साइड इज इक्वल टू 2000 डिवाइड बाई 4, वी गेट 500 मीटर. दैट इज द मेजरमेंट ऑफ वन साइड. साइड ऑफ द स्क्वायर इज 500 मीटर. एरिया ऑफ स्क्वायर इज 500 into 500 is 2,50,000 meter square. Now 100 meter square area cost is rupees 35. So what is the cost of 2,50,000 meter square area? So 35 divided by 100 into 2,50,000 gives you 87,500 rupees. That is the total cost. If you want to solve this question by proportion method, you can also solve. Like this is the cost, 16 rupees cost. So in that case you will solve this question into two cases. First case में आपका आपने साइड निकालनी है स्क्वायर की, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है. सेकंड फेज में आपने एरिया को लेके जाना है और कॉस्ट निकालनी है. सबसे पहले यहाँ कॉस्ट दी हुई है और पैरामीटर की फेंसिंग की लेंथ दी है. तो 32,000 रुपीज़ में
लेंथ को हमने क्या कंसिडर किया, x मीटर. So 16:32,000 proportion to 1:x because यूनिट इज सेम, यूनिट सेम होंगे तभी मेरी रेशो प्रोपोर्शन में होगी. रेशो को हम अरेंज कर सकते हैं क्योंकि रेशो हमेशा सेम यूनिट की ही होती है. प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. एक्सट्रीम्स मीन दीज टू टर्म्स, मीन्स मीन 32,000 मल्टीप्लाई बाय 1. सेंटर की दोनों टर्म और साइड की दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया. 16x इज इक्वल टू 32,000. 32,000 डिवाइड बाय 16 गिव मी 2000 meter. Then perimeter of square is 2000 meter and side according to that is 500 meter. Area of square is 2,50,000. Now in case 2 में मुझे एरिया दिया, मुझे कॉस्ट निकालनी है. 100 मीटर स्क्वायर एरिया कॉस्ट इज 35 रुपीज़. 2,50,000 मीटर स्क्वायर एरिया इज 5 रुपीज़. नाउ यू गो विद द प्रोपोर्शन फॉर्म. 100 ratio 2,50,000 proportion to 35 ratio y. Product of means and product of extremes gives you y value as 87,500 rupees. 6th question में आपको ये गिवन है कि वायर इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर. एक वायर है, उसको उसी वायर से दो शेप्स बनाई गई. एक से स्क्वायर बना जिसकी साइड 8 सेंटीमीटर थी, फिर उसी वायर को हटा के फिर बेंड करके एक रेक्टेंगल बना दिया गया. पहले स्क्वायर बनाया गया, फिर उसको थोड़ा और बेंड करके उसको रेक्टेंगल शेप बना दी गई. रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर गिवन है. आपको ब्रेथ निकालनी है, फिर उसके बाद चेक करना है कि किसका एरिया सबसे ज़्यादा था, स्क्वायर का एरिया या रेक्टेंगल का एरिया. स्क्वायर की अगर मुझे साइड की बने 8 सेंटीमीटर, पैरामीटर आ जाएगा 32 सेंटीमीटर क्योंकि इन दोनों में कॉमन पैरामीटर ही होगा. क्योंकि जो वायर है, जिस वायर से स्क्वायर बनाया गया, जिस वायर से रेक्टेंगल बनाया गया, उसकी लेंथ फिक्स थी. दैट मीन्स इन दोनों का पैरामीटर सेम होगा. जो स्क्वायर का पैरामीटर निकलेगा वही रेक्टेंगल का पैरामीटर होगा. तो 32 सेंटीमीटर विल बी रेक्टेंगल पैरामीटर. Perimeter formula 2 into length plus breadth is equal to 32. Length we have given 10 centimeter in my question. So we find the breadth value is by solving this 6 centimeter and area length into breadth is 60 centimeter square. Now come with the area of the square. So here side is 8 centimeters, area of square is 8 into 8, 64 centimeter. If you compare both areas, square area is more than rectangle area. So that is your required answer. Next is question number 7. Question number 7 में आपको given है, शॉर्ट फॉर्म में मैं डायग्राम के थ्रू बनाती हूँ बिकॉज वी हैव वेरी लेस टाइम, वी हैव टू डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस. हियर you have one parallelogram is given, okay, and two adjacent side measurement is given. One is 15 centimeter, another is 10 centimeter. अगर आपको दो adjacent sides given है, एक की लेंथ ज़्यादा है और एक की लेंथ कम है, तो आपके क्वेश्चन में ये दिया गया कि जो स्मॉल लेंथ की साइड्स हैं, ऑपोजिट साइड्स हैं, उनके बीच का डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है, बट जिनकी लेंथ ज़्यादा है, ग्रेटर साइड की जो ग्रेटर मेजरमेंट है, जिस साइड की लेंथ ज़्यादा है उसकी डिस्टेंस हमारे पास नहीं है. तो वो आपने निकालना है कि जो लार्जर लेंथ वाली साइड थी उनके बीच का डिस्टेंस क्या था, क्योंकि स्मॉलर लेंथ जो 10 सेंटीमीटर है उन साइड्स के बीच का डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है. तो यहाँ पे हमने इसको बेस 1 का नाम दिया, इसको बेस 2 का, दैट इज़ हाइट 2 एंड दिस इज़ हाइट 1. ओके, अब एरिया मैंने आपको पहले भी बोला था, पैरेललोग्राम का एरिया किसी भी वे से निकल सकता है. मुझे बेस और हाइट चाहिए. हाइट मीन डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स एंड द बेस, जिसके साथ वो हम मेजर कर रहे हैं, कि जिन साइड्स को हम मेजर कर रहे हैं, जिनके बीच का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, दैट विल बी कंसिडर एज बेस. बेस 1 15, बेस 2 10, height 2 12 centimeter, height 1 we have to find. Area we can find two ways, height 2 into base 2, that is 120 centimeter, and another form of area is base 1 into height 1. So 15 into height 1, when you compare these two, and height 1 is equal to 120 divided by 15 gives you 8 centimeter is the distance between the largest sides. Next is height of the rhombus is 15 centimeter. आपको रोम्बस की हाइट दी है 15 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज 195 सेंटीमीटर के, फाइंड इट्स पैरामीटर. तो हम इसी कंडीशन में रोम्बस को पैरेललोग्राम की तरह ही लेंगे, जिसमें बट इतना डिफरेंस होगा कि उसकी सारी साइड की मेजरमेंट क्या होगी, सेम होगी, और ये बीच में
साइड के बीच का जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर है, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। बट अगर हम इस रोम्बस को पैलोग्राम की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो पैलोग्राम का एरिया का फॉर्मूला ही लगेगा बेस इंटू हाइट। एरिया वी हैव गिवन बेस इंटू हाइट, बेस इज इक्वल टू एरिया डिवाइड बाई हाइट, दैट गिव मी 13 सेंटीमीटर। तो जैसे यहाँ पे 13 सेंटीमीटर आ गया तो मुझे पेरीमीटर निकालना है। रोम्बस में क्या होता है, सारी साइड की मेजरमेंट सेम होती है, तो इनको 4 टाइम्स ऐड करने के बजाय मैं सीधे 4 इंटू 13 लिख देती हूँ, दैट इज 52 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 55 मीटर। आपको यहाँ पे दिया क्या क्या है, आई विल शो यू इन द स्टेटमेंट। शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ आपको क्वेश्चन में क्या दिया है। आपको क्वेश्चन में दिया है एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसकी लेंथ 55 मीटर दिया है और उसी फील्ड का एरिया आपको गिवन है क्वेश्चन में 2310 मीटर स्क्वायर। पहले तो आपको ब्रेथ निकालनी है कि उसकी ब्रेथ कितनी है, क्योंकि इसमें बेसिकली ये निकालना है कि एक रोहित है उस पूरे फील्ड का राउंड, एक राउंड जैसे मान लो कि दिस वन इज रेक्टेंगुलर फील्ड, रोहित ने पूरा एक राउंड लगाना है। ओके, पहले तो आपने लगाना है कि ये जो राउंड है इसी राउंड को हम बोलेंगे, जैसे आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में जाते हो तो एक राउंड लगा रहे हो, तो इसका एक रेक्टेंगुलर फील्ड का चारों साइड का उसने राउंड लगाना है। तो जो एक पैरामीटर आ गया वो उसका 1 राउंड आ गया। तो आपने पहले ये निकालना है कि अगर उसकी स्पीड, भागने की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है तो एक पूरे राउंड को ख़त्म करने में वो कितना टाइम लेता है। इसी तरह से अगर वो उसके 4 राउंड लग जाए, ओके, तो 4 राउंड में वो कितना टाइम लेगा, वो हमने इसमें आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले तो मुझे चाहिए पैरामीटर। पैरामीटर मीन्स बाउंड्री, की बाउंड्री कितनी थी, डिस्टेंस कितना था जितना रोहित ने कवर किया, क्योंकि एक जो पैरामीटर होगा दैट मीन्स 1 राउंड, 1 राउंड मीन्स कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। तो उसके लिए मुझे पहले इस रेक्टेंगुलर फीट का पैरामीटर चाहिए। पैरामीटर के लिए मुझे ब्रेथ चाहिए और लेंथ मेरे पास है, मुझे ब्रेथ चाहिए। मुझे एरिया गिवन है 2310, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, breadth is equal to area divided by length 55 meter, breadth is equal to 42 meter. Perimeter of the field is 2 into length plus breadth, length is 55, breadth is 42, so that gives you 97 into 2 194 meter. That means इतना डिस्टेंस कवर किया रोहित ने एक राउंड में, 194 मीटर, स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर। मेरा स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट अगर मुझे निकालना है टाइम टेकन, पहले तो मुझे निकालना है टाइम टेकन, क्योंकि मेरे पास डिस्टेंस गिवन है, स्पीड गिवन है, तो मेरे पास टाइम का फॉर्मूला आ जाएगा डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर किया, 194 मीटर और स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर। अब हमने इसको रेशो में लिखा है, हम इसको ऐसे डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, पहले मुझे यूनिट सेम बनाने पड़ेंगे। 5 किलोमीटर को चेंज किया, ये आ गया 5000 मीटर पर आवर, का मतलब है डिवाइड बाय 1 आवर, और वही डिवाइड बाय 1 आवर जब एक डिनोमिनेटर में लिखा जाता है वो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाता है कि इस दैट मीन्स इस तरह से 194 मीटर देन 5 किलोमीटर डिवाइड बाय 1 आवर, इस तरह से लिखा जाता है 5 किलोमीटर डिवाइड बाय 1 आवर, और यही 1 आवर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा 1 आवर। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, कन्वर्ट किया आपने मिनट में चेंज किया, 2.328 मिनट आ गया। ये एक राउंड में आ गया कि एक राउंड में कितना टाइम लगा, 2.328 मिनट, और 4 राउंड्स में कितना लगेगा, 9 into 312 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर 10th क्वेश्चन। इन दिस एरिया ऑफ द सर्कुलर गार्डन, आपको एक गार्डन का एरिया दिया गया। इस तरह से अगर एक सर्कल है आपके पास, अगर ये सर्कल है तो बीच में एक स्प्रिंकल लगा हुआ है, सेंटर में सर्कल का जो सेंटर है वहाँ से स्प्रिंकल लगा हुआ है, और वो स्प्रिंकल एक 5 मीटर रेडियस तक ही वो पानी स्प्रेड कर सकता है। आपको ये बताना है कि ये जो स्प्रिंकल लगा है, जो पानी स्प्रेड कर रहा है इस गार्डन में, क्या वो पूरे गार्डन को कवर कर रहा है। पहले तो आप देखोगे कि स्प्रिंकल कितना एरिया कवर कर रहा है और आपके गार्डन का एरिया तो आपको गिवन था 160 मीटर स्क्वायर। अब जो एरिया कवर्ड बाय वाटर, ये जो पानी कवर कर रहा है एरिया, वो भी सर्कल की शेप में कर रहा है क्योंकि बीच में वो फिक्स है, तो पाई आर स्क्वायर से 154 मीटर स्क्वायर, ये 154 मीटर स्क्वायर एरिया ही कवर कर रहा है, जबकि गार्डन का एरिया 160 मीटर स्क्वायर है। दैट मीन्स कि जो आपका स्प्रिंकल है वो पूरे गार्डन को पानी नहीं दे रहा। नेक्स्ट इज द सर्कल ऑफ द रेडियस 7 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम द स्क्वायर।
एक स्क्वायर आपको दिया है, एक मेटल शीट की स्क्वायर फॉर्म में आपको शीट दी है, इसकी साइड दिया 21 सेंटीमीटर गिवन है और इसमें से एक सर्कल निकाल दिया गया 7 सेंटीमीटर रेडियस का। तो आपने बताना है कि ये बाहर का एरिया कितना रह गया, ये वाला। तो आपने इस जो स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस कर देना है। एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया 21 इंटू 21 एंड एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, सो दैट गिव्स मी 287 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन। इसमें आपको शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। आपको एक ट्राइंगल गिवन है और ये भी गिवन है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, बाहर वाली जो एक्स वाई जेड है। ओके, अब इसके अंदर एक और ट्राइंगल है ओ वाई जेड। ओ वाई की मेजरमेंट गिवन है, ओ जेड की मेजरमेंट गिवन है और वाई जेड तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग टू ये 10 सेंटीमीटर है। आपने इतने शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। तो बाहर वाली ट्राइंगल के एरिया में से ये जो है अनशेडेड ट्राइंगल का एरिया आप माइनस कर दोगे तो आपका एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ वाई जेड। पहले तो आपने सेपरेटली इनके एरियाज निकालने हैं। जो बाहर वाली ट्राइंगल है एक्स वाई जेड वो मेरी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। सो यहाँ पे 25 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 अप्लाई करेंगे और कैलकुलेट करके आ गया 43.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको थोड़ा साइड पे रखेंगे। अब सेकंड ये वाली जो ट्राइंगल है, अब इसमें 6, 5 और 10, मैंने आपको भी पहले बोला था जब मेजरमेंट अलग अलग होती है तो उसको हम स्केलिंग ट्राइंगल बोलते हैं और उसको हम हमेशा एरिया हीरोन्स फॉर्मूला से ही निकालते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे एरिया निकाला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ वाई जेड, एक्स ओ वाई को ए कंसिडर किया, ओ जेड को बी एंड वाई जेड को सी। 6, 5 एंड 10 सेमी पैरामीटर निकाला, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, दैट गिव्स मी 21/2 इज इक्वल टू 10.5। या तो आप पॉइंट्स में ले लो या आप फ्रैक्शन में ले लो, दोनों तरह से आपके एरिया सेम आएगा। थोड़ी कैलकुलेशन बिगर हो जाएगी बट यू हैव टू डू द कैलकुलेशन वेदर यू कैन गो दिस वे और वेदर यू कैन गो दिस वे। लाइक 10.5 minus 6, 10.5 minus 5, 10.5 minus 10. After multiplication, you will get square root of 129.94 and square root of 129.94 is 11.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो आपका पहले वाली ट्रायंगल का एरिया निकला था 43.3 में से 11.4 सब्ट्रैक्ट किया तो 31.9 सेंटीमीटर इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। नेक्स्ट इज 13th क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन में आपको शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। पहले तो आपने फिगर्स काउंट करनी है कि आपके फिगर में क्या क्या गिवन है। ओके, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, इफ़ यू लुक एट द फिगर हियर, एक ये पूरा सर्कल है और एक ये क्वाड्रेंट है। तो इसमें क्या है, 3 पार्ट्स हैं। ये सारा मेरा शेडेड है और ये मेरा सारा शेडेड पोर्शन है। ये सारा शेडेड पोर्शन के अंदर है, ये शेडेड पोर्शन, सब इतना ही पोर्शन अनशेडेड। पहले तो आप इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। पहला तो ये है सर्कल के 3 पार्ट्स, क्योंकि 4 में से 3 पार्ट्स, ये क्वाड्रेंट और ये वाला बीच वाला स्क्वायर, तो ये 3 पार्ट्स हैं। ओके, अब इन 3 पार्ट्स में जो शेडेड पोर्शन है उनका एरिया आपने ऐड कर देना है। ये वाले पार्ट का आ गया 3 टाइम्स पाई आर स्क्वायर बाई 4 की जो मेरे क्वाड्रेंट थे 1, 2, 3 टाइम्स क्वाड्रेंट था, प्लस एक ये वाला क्वाड्रेंट था। इनको तो मैंने पहले ही ऐड करके लिख दी। अब प्लस, अब आ जाओ इस स्क्वायर में से। स्क्वायर में से क्या करना है आपने, ये जो अनशेडेड पोर्शन है उसको निकालना है। तो मैंने आपको बोला था जब भी इस टाइप की लीफ बनी होगी तो आपने क्या करना है, पहले इतने एक लाइन ड्रॉ करके इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है इस लीफ को। फिर आप ध्यान से देखो, ये वाला एक क्वाड्रेंट है और ये वाली एक राइट ट्राइंगल है। तो क्वाड्रेंट में से आप राइट ट्राइंगल का एरिया, क्वाड्रेंट के एरिया में से एक राइट ट्राइंगल का एरिया माइनस करोगे तो सिर्फ इतने पोर्शन का एरिया आएगा। तो हमने जैसे इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था लीफ को, अगर एक पार्ट का एरिया आ गया तो दूसरे पार्ट का एरिया निकालने के लिए जो आपका क्वाड्रेंट में से आपने ट्राइंगल का एरिया माइनस किया था उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इतना पोर्शन आ गया, ये जो मैं इतना पोर्शन है अनशेडेड लीफ का आ गया एरिया। अब ये पूरा बाहर क्या बन रहा है, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ, इधर से रेडियस ज्वाइन करूँ इधर से, क्योंकि ये पूरा डायमीटर 14 है, 14 का हाफ 7 आ गया, तो ये मेरा एक स्क्वायर शेप बन रहा है। तो स्क्वायर में से अगर मैं लीफ का एरिया माइनस कर दूँ, स्क्वायर का एरिया 7 इंटू 7 स्क्वायर,
और -2 पाई क्वाड्रेंट में से मैंने ट्राइंगल का एरिया माइनस किया तो ये मेरा लीफ का एरिया आ गया। 2 इसलिए लिखा क्योंकि ये एक पोर्शन का एरिया था क्वाड्रेंट माइनस ट्राइंगल, और दूसरा पोर्शन भी उसी के जैसा हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, इसलिए 2 टाइम्स लिखा मैं। अब सिर्फ मैंने क्या करना है, जहाँ जहाँ आर है वैल्यू अप्लाई कर देनी है। इनको जब आप एलसीएम लोगे 4, 3 + 1 4, 4 4 कैंसिल हो गया तो अल्टीमेटली आपका आ गया पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे साइड आपकी 7 थी, रेडियस भी आपका 7 था। व्हेन यू कैलकुलेट यू विल गेट 49 - 28, और इधर जब आपने आर की वैल्यू अप्लाई की यू विल गेट 154 + 21 = 175 सेंटीमीटर स्क्वायर। 14th क्वेश्चन में क्या है कि एक आपको ट्रेपेजियम गिवन है, दो पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर गिवन है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम गिवन है 729 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक साइड गिवन है और दूसरी साइड ये बोला गया जो उसके सामने वाली पैरेलल साइड है, पहले वाली साइड से अगर 7 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए तो स्मॉलेस्ट पैरेलल साइड बन जाती है। तो अगर मैं इस साइड को x कंसिडर करूं तो ये आ जाएगी x - 7। तो अल्टीमेटली मुझे निकालना है कि साइड्स क्या थी। तो आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो x + x - 7 इंटू 9। So when you cross multiply this one that give you x is equal to 169/2, that is 84.5। जैसे आपके पास x की वैल्यू आ जाती है तो ये एक साइड आ गई, दूसरी साइड निकालने के लिए -7 करेंगे तो इट गिव्स यू 77.5 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट है आपका 5th क्वेश्चन। इसमें क्या करना है कि आपको जैसे भी फिगर दी गई है, इसमें जब इस तरह की कोई फिगर आती है तो दो ही आपके फॉर्मूलाज यूज़ होते हैं, एक आपकी ट्राइंगल होती है और एक आपकी ट्रेपेजियम, क्योंकि दो ही तरह की शेप बनती है, या वो ट्राइंगल होगी राइट एंगल ट्राइंगल, या वो ट्रेपेजियम शेप होगी। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हाफ इंटू जो सामने वाली पैरेलल साइड से आपने उनको ऐड कर देना है और पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस मल्टीप्लाई करना है, और ट्राइंगल के एरिया में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट्स। यही दो फॉर्मूले पूरी फिगर में अप्लाई होंगे। सबसे पहले टारगेट है कि आपने फिगर ड्रॉ कैसे करनी है। जैसे आपको यहाँ पे गिवन है, आपको यहाँ पे कुछ भी, जैसे आपको एक आपको एक रेक्टेंगल गिवन है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम, ये मैटर करता है। फ्रॉम और टू, फ्रॉम का मतलब है कि ए पॉइंट से पर्सन ने चलना स्टार्ट किया, 12 मीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर एन तक पहुंचा, तो ए से एन तक का डिस्टेंस 20 हो गया, ए से ओ तक का डिस्टेंस 30 हो गया, ए से पी का डिस्टेंस 39 हो गया, और पी से डी तक का डिस्टेंस 49। टोटल उसने यहाँ से लेके 49 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, और उसके रास्ते में ये होल्ड पॉइंट थे, इधर से बी, सी, ई एंड एफ। तो उनका ये डिस्टेंस है कि एम से बी तक का डिस्टेंस, ओ से सी तक का डिस्टेंस 18, एन से एफ तक का डिस्टेंस 25 और पी से ई तक का डिस्टेंस 10। सबसे पहले तो आपने इसको प्रॉपर शेप में ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, इसी को फिगर को मैं साथ साथ रख रही हूँ। ड्रॉ करने के लिए क्या किया, पहले मैंने ए, जो मेरे पास ए, इसको साइड पे नहीं लिखना कुछ भी, ए और डी, क्योंकि फ्रॉम लिखा हुआ है कि आपका एक कॉर्नर ए है, एक कॉर्नर डी है, ए और डी, और एम एन ओ पी उसके बीच के पॉइंट है, ए और डी के बीच के पॉइंट है। ओके, तो सबसे पहले आपने एक डिस्टेंस पे ए एम एन ओ पी लिख दिया, एक लाइन को ज्वाइन कर दिया ए से डी तक। अब एम के ऑपोजिट यहाँ पे क्या है, बी, एम के ऑपोजिट बी पॉइंट मार्क कर दिया, ओ के ऑपोजिट क्या है, सी, ओके, पी के ऑपोजिट क्या है, ई, एन के ऑपोजिट क्या है, एफ। तो अब देखना है कि ये जो है 25 का मतलब है एन से एफ तक का डिस्टेंस 25, यहाँ 10 का मतलब है कि पी से ई तक का डिस्टेंस क्या है, 10 मीटर्स। और अगर आप 10 लिखो तो वो ज़्यादा इजी, क्योंकि वो जब आप आंसर कैलकुलेट करोगे तब आप मीटर्स का मेंशन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मीटर लिखोगे तो आपको हो सकता है कि कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आए, तो बेटर है मीटर कैलकुलेशन के बाद आप मेंशन कर दो। ओके, उसके बाद है अब इनके बीच का डिस्टेंस आपने देखना है। ये तो आपको गिवन ही था, ए से एम तक वो कितना 12 मीटर तक चला, तो ए से एम तक का डिस्टेंस 12 मीटर है, बट आगे मुझे एम और एन का निकालना है। अगर एम और एन का यहाँ पे डिस्टेंस निकालना, जब इस तरह की फिगर होती है तो ये जो पॉइंट्स होते हैं फ्रॉम और टू का मतलब है कि ए से एन, ए से ही एन 20 के डिस्टेंस पर है, ए से ही ओ 30 के, ए से ही पी 39 के। उसके लिए आपको पहले प्रॉपर डिस्टेंस बीच का निकालना पड़ेगा।
जैसे मुझे एम एन के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो जितना एम पॉइंट पे नंबर है और जितना एन पॉइंट पे नंबर है उनको माइनस कर देंगे। 20 माइनस 12, क्योंकि यहाँ पे 20 था, 20 माइनस 12 आपके पास 8 आ गया। दैट मीन्स एम एन का डिस्टेंस 8 आ गया। इसी तरह से आपका ओ एन का डिस्टेंस, ओ एन के डिस्टेंस में ओ पॉइंट पे आपका नंबर था 30 और एन पे आपका नंबर था 20। 30 माइनस 20 10, तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या आ गया मेरे पास, 10 आ गया। उसके बाद यहाँ पे मुझे पी ओ के बीच का डिस्टेंस निकालना है। पी ओ के बीच का डिस्टेंस है, पी पॉइंट तक 39 था और ओ पर था 30। 39 माइनस 30 गिव्स मी 9। और डी पी मीन्स जहाँ तक लास्ट में पहुँचा 49 और उसके पीछे वाला पी पॉइंट था 39। 49 माइनस 39 गिव्स मी 10। तो इस तरह से पहले डिस्टेंस निकाल लेना है। कई बार तो अगर आपको इस टाइप की फिगर दी है उसमें तो आपको डिस्टेंस निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। जो ऑलरेडी आपको प्रॉपर इस वजह से फिगर दी है उसमें ऑलरेडी आपको डिस्टेंस मेंशन होता है। ए एम से 20, एम आई से 10, आई से जे 30, जे से के 40, के से ई, के से एल 10 और एल से ई 20। ये आपको ऑलरेडी मेंशन होता है। वहाँ पे सिर्फ आपको रीजन डिवाइड करने हैं और एरिया डिवाइड करना है। सबसे इजी मेथड ये है कि मुझे ये सारे लिखने नहीं है। मैंने इन सारे जो मेरे जब सभी को ज्वाइन किया, जो इस तरफ थी, एम बी के साथ ज्वाइन हुआ, एफ एन के साथ ज्वाइन हुआ। जैसे आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि कुछ यहाँ पे पॉइंट्स फ्री के हैं, उसके ऑपोजिट कोई पॉइंट नहीं है, तो आपने उनको एज इट इज़ ही लेना है। आपने उनको ज्वाइन नहीं करना, उनको एज इट इज़ ही लाइन पे मार्क करना है। हाँ, जिसके ऑपोजिट होगा उसको ज्वाइन कर देना है, जिसके ऑपोजिट नहीं होगा उसको एज इट इज़ ही छोड़ देना है। वो जस्ट कन्फ्यूज़न के लिए है। ओके, ओ सी और पी ई, क्योंकि इनके डिस्टेंस आपको गिवन था, इनको हमने कुछ नहीं करना क्योंकि ये डिस्टेंस गिवन था। जब फ्रॉम टू ए टू डी आता तो आपने ए से चलना स्टार्ट करना है, डी तक जितने भी होल्ड पॉइंट है उनके बीच के डिस्टेंस को सेपरेट कर लेना है। अब जैसे अब कितनी फिगर्स बन गई, 1 2 3 4 5 6 फिगर बन गई। तो मैंने इनको एक रीजन का नाम दे दिया, 1 रीजन, 2 रीजन, 3 4 5 6, ताकि मेरा एरिया निकालना ईजी हो जाए। अब मुझे फर्स्ट वाले रीजन का एरिया निकालना है। पहले मुझे ये ट्राइंगल को जज करना है। इसमें ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, किसी भी फॉर्म में लिख लो। बेस 25 है, हाइट ये वाली पूरी जो ट्राइंगल का पार्ट में आएगी, तो ये 8 प्लस 12, तो आपने इनको ऐड करना पड़ेगा। ट्राइंगल के पार्ट में जितना भी पोर्शन आ रहा है आपने उसको ऐड करना है। 8 प्लस 12 आपका 20 आ जाएगा, तो ये 250 मीटर स्क्वायर। इसी तरह से अब यहाँ पे ये बन गया ट्रेपेजियम। दो तरह की फिगर बनेगी, एक ट्राइंगल या ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में ये जो पैरेलल साइड्स हैं इनको पहले ऐड करोगे, 25 और 10 आपका 35 आ गया। और इनके बीच का, दो पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस इतना 10 है और इतना 9 है, ये 19 आ गया। देन 35/2 इंटू 19 इज 332.5 मीटर स्क्वायर। इसी तरह से थर्ड रीजन अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फोर्थ रीजन अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 18 इंटू हाइट। ये पूरी जो ट्राइंगल के पार्ट में हाइट होगी वही आपने काउंट करनी है। जैसे 9 10 19 आ गया। अभी यहाँ पे जैसे ये वाला आ गया, ये दो पैरेलल साइड इतने डिस्टेंस है और पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस 8 प्लस 10 18 है, तो ये आ जाएगा हाफ इंटू 18 इंटू 15 प्लस 18, सो दैट गिव मी 297। इसी तरह से लास्ट जो 6 रीजन था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जितना भी एरिया निकला आपको रीजन का, आपने लास्ट में इनको ऐड कर देना, तो दैट विल बी योर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द फिगर 1190.5। नेक्स्ट इज इसी तरह से आपका 15B है, उसमें भी ऐसे ही हमने आपको इसी टाइप की फिगर गिवन थी, इसमें आपका ट्रायंगल था फ्रॉम ए टू डी था, तो ए एक्स वाई जेड डी ये मार्क कर दिया एक सिंगल लाइन में। इस तरफ बी था, एक्स के ऑपोजिट बी, जेड के ऑपोजिट सी और वाई के ऑपोजिट था ई। वाई से यहाँ तक का डिस्टेंस 25, 15 और 10, पर बीच का डिस्टेंस के लिए क्योंकि हमारे फ्रॉम और टू वर्ड लिखा हुआ है, तो ए से एक्स तक का डिस्टेंस तो 30 फिक्स हो गया, बट एक्स वाई के बीच का डिस्टेंस ही बता। तो एक्स वाई का निकालने के लिए वाई एक्स का 50 माइनस 30, वाई पे 50 था, एक्स पे 30 था, 50 माइनस 30 20। इसी तरह से जेड वाई का 95 माइनस 50 45 आ गया, और डी जेड का आ गया
110 माइनस 95, क्योंकि डी पे 110 था, जेड पे क्या था 95, तो ये 15 आ गया। इसी तरह से आपके ये 5 रीज़न बन गए। फर्स्ट रीज़न हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सेकेंड रीज़न हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, थर्ड ऑल्सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक ही ट्रेपेजियम है ये वाली, जिसमें सम ऑफ पैरेलल साइड्स और पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस 20 प्लस 45, 20 plus 45 give you 65, तो 812.5, और when you add all areas that gives you 2487। 16 क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको फिगर गिवन थी, सिर्फ आपको रीजन को मार्क करना था। 1 2 3 आप किसी भी ऑर्डर में मार्क कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि हमें अलग अलग यहाँ डिस्टेंस करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको सब कुछ गिवन है। डिस्टेंस सिर्फ तभी होगा जब आपको एक रेक्टेंगल दी होगी, उसी में आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा सिर्फ बीच वाली का, क्योंकि साइड का आपको गिवन होगा। तो ये मेरे टोटल 8 रीज़न आ गए। फर्स्ट रीज़न में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये आपका हाइट आ गया 20 प्लस 10 30, हाफ इंटू 30 इंटू 40, दैट आई डायरेक्टली अप्लाइड हियर। सिमिलरली सेकेंड रीज़न में ट्रेपेजियम है 40 और 10, सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इनके बीच का डिस्टेंस 30। सिमिलरली ये भी थर्ड वाला भी ट्रेपेजियम है 10 प्लस 30 और बीच का डिस्टेंस 40। ये वाली आपकी राइट एंगल ट्राइंगल है 10 इंटू 20, 10 प्लस 20 30, 30 हाफ। सिमिलरली ये भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे आपका ये वाली जो आपकी फिफ्थ वाली है 20, हाफ इंटू 20 इंटू 20, फिर से ये ट्रेपेजियम है, ऑपोजिट साइड पैरेलल साइड्स 50 प्लस 20 70, और बीच की डिस्टेंस 40 प्लस 10 50। इसी तरह से ये भी आपका ट्रेपेजियम है, ऑपोजिट साइड की पैरेलल साइड्स की को प्लस कर देना 30 प्लस 50, और बीच का डिस्टेंस 10 प्लस 30 40। इसी तरह से लास्ट 8 वाला भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इन सबको आप ऐड करोगे, दैट विल बी योर required area. So that will be your required area of the given figure that you have to find. Thank you. Have a nice day.